Hello students. Student Standard 12 Part 6 of Unit 12 Aldehyde, Ketone and Carboxylic Acid. Itinerary the way of Part 6 is going to explain you about the chemical properties of aldehyde and ketone. Till the part we have studied the physical properties and the preparation of aldehyde, ketone and aldehyde and ketone both. Now in this part 6 of standard 12, unit 12, I am going to explain you about the chemical properties of aldehyde and ketone. As we know student, here we are going to talk about the nucleophilic addition reaction. The nucleophilic means what? The species which is nucleus lover. Nucleus lover in the sense nucleus is having the positive charge, means species itself is a negative charge, is attached to the carbonyl group, and how the steps or reactions occurs. So first we'll just think about the mechanism and then we'll go with the different reactions of aldehyde and ketone with chemical properties. So let us see that here chemical properties. Look at the board everyone now. Chemical properties of aldehyde and ketone. Now as I said, nucleophilic addition reaction. Nucleophilic means the nucleus lover. Nucleus lover is attack towards the nucleus. Nucleophilic species attack towards nucleus. And as we know, nucleus is a positive charge. So this species is negative charge, and that's why we say that it is a nucleus lover species. Now we'll try to study that. Here this is the carbonyl group, C double bond O. Here we will not think whether it is aldehyde or ketone. If we are keeping here as H, then it is aldehyde, and both is the R, then it is a ketone. But just we will try to understand how the species attack. Now here you know that this is our sigma bond and this is our pi bond, and as per this carbon and oxygen, oxygen is partially negative charge while the carbon is having the partially positive charge as compared to the carbon and oxygen. Now when this nucleophile attack towards the, so nucleophile will attack towards the carbon because carbon is partially positive charge and nucleophile is having the extra nucleus over here. So it comes and attack to the carbon. Now student, first of all we'll see that suppose what is this situation. Here we don't think about the nucleophile is attack, only we'll think about this situation. So whether this is a stable situation or unstable situation. If it is an unstable situation, then this carbon is ready to attack by the nucleophile to become the stable, because as we know in the system everybody wants to make themselves as a stable. So here we'll see carbon is having partially positive charge, oxygen is having partially negative charge, and the 4 valency of carbon is also satisfied. That way if we'll see, then here also both the charges are equally distributed. So this condition is a stable condition. So now stable में से the nucleophile जब attack होता है तो वो condition कौन से form में convert होती है, that also we'll see. Now here nucleophile has attacked. So now here what happened? Here this carbon bond, one is with the oxygen already and
one bond is formed by the nucleophile. One bond is formed by the nucleophile. Now here what happens, students? This oxygen is having 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and minus charge. 3 lone pair electron with the minus charge. Now here this is the most unstable condition because the oxygen is having the more negative charge by when the nucleophile is attacked. Now when the nucleophile is attacked, this condition become unstable. So stable में से unstable condition में जा रहा है, इसलिए first ये जो step हुआ हमारा, it is a slow step. It is a slow step. Now what happens, students? After that we are going to do that hydrolysis. So second step में क्या होता है? Here the H plus is going to be added. So now what happened? This oxygen is having the more negative charge with the unpaired electron. So in second step, this oxygen is attached by hydrogen and here your nucleophile. So this way, this is your fourth step will be the stable step. So this is your stable step in the second condition, and that's why this is your fast step. So first step is a slow step because this is already stable condition. From the stable condition we are making it to unstable. So it does not allow situation to be unstable. That's why it goes slowly, and then when the H plus is added, again it comes to be in stable form by attacking the OH here. So here this is your stable step, is the second step is your fast step. So I hope so you understand this, student. This is the mechanism. अब अगर यहाँ पर ये बात हम करेंगे तो उसके साथ में ये भी एक देखना है कि कौन कौन सी इफेक्ट यहाँ होगी कार्बन के ऊपर. स्टेरिक इफेक्ट रहती है, इंडक्टिव इफेक्ट रहती है, कौन सी इफेक्ट रहती है. सो हियर विल जस्ट सी अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द कीटोन. उसका रीजन क्या है यहाँ पर? अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव बिकॉज सबसे पहला काम तो है अल्डिहाइड के लिए यहाँ स्टेरिक इफेक्ट हम लेते हैं. एक रहेगा स्टेरिक इफेक्ट और एक रहेगा उसके ऊपर इंडक्टिव इफेक्ट. So steric and inductive effect both is affecting to the aldehyde. So that's why aldehyde is more reactive than the ketone. And अगर हम बात करें इसमें तो formaldehyde HCHO is most reactive than RCHO. And then if we'll go then about ketone. This is the reactivity sequence for the aldehyde and ketone. So here you I think understand how this nucleophile addition reaction takes place or the chemical properties. Here this is a carbon and oxygen both is having the equal distributed charge. Student, no need to go for the mechanism every time. But it is to be understand why the first step is a slow step and second step is a fast step. So just to make you clear, I explain you how the reaction occurs. Now let us start with the chemical properties of aldehyde and ketone. We are going to study about the 4 different reactions. First we are going to study about the HCN के साथ में reaction लेंगे, ग्रीनगार्ड reagent से भी reaction लेंगे हम उसमें. SO3H के साथ में रिएक्शन लेते, वहां पर हमें यही देखना है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों रहेगा, पर अटैक कौन करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. अगर HCN की बात करते हैं हम तो H प्लस है, तो H प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल है, CN माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल है. तो हमारा रिएक्शन जो होगा वो CN माइनस का कार्बन के साथ में रिएक्शन होगा.
तो इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों हमेशा साथ में ही रहता है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट रिएक्शन विद HCN. First reaction with HCN. Now here the same way C double bond O plus, as I said, we are going to take the nucleophile. It is HCN. Here your this CN is your nucleophile. So CN will be attacked towards the carbon. So first step over here. So first step में क्या होता है? As I said, it is a slow step. So this is your O with 1, 2, 3, 4, 5, 6 minus charge, and your nucleophile is attached towards here. So this is your slow step. Now hydrolysis occurs. So this H plus, here we will go with the H plus, then C OH and CN. This is your cyanohydrin. साइनोहाइड्रिन. ये रिएक्शन हमें मिला जब हमने HCl का रिएक्शन करवाया तब. तो यही सिस्टम जो है वो हर एक जो भी रिएक्शन होगा इसमें हमें यही फॉलो करना है कि सबसे पहला जो है वो स्लो स्टेप रहेगा, उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और उसके बाद में प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन से हमें वो फाइनली जो स्टेबल पीसीस है वो स्टेबल स्पीसीज मिलता है. सो नेक्स्ट रिएक्शन विल गो विद सेकेंड रिएक्शन विल गो दैट इज नाउ. एक बात यहाँ पर ये भी है, हमने यहाँ पर प्रोटोनेशन किया तो यहाँ हमने कोई भी कैटालिस्ट यूज नहीं किया है. ये रिएक्शन अपने आप भी हो जाता है. तो यहाँ अगर एसिड कैटालिस्ट लेते हैं, बेस कैटालिस्ट लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है वो भी थोड़ा सा नोट कर लेते हैं. सिस्टम के अंदर ये रिएक्शन अपने आप पॉसिबल है. सो इफ विल थिंक इफ एसिड इज यूज एज अ कैटालिस्ट फॉर दिस, then Cn minus is fastly attack and we get cyanohydrin. Student यहाँ पर प्रोडक्ट तो cyanohydrin ही रहेगी whether we are using the catalyst or not, but ये जो स्टेप है वो स्टेप में फर्क रहेगा. सो एसिड कैटालिस्ट यूज करने से जो प्रोडक्ट है cyanohydrin वो फास्ट मिलती है. बेस कैटालिस्ट यूज कर, एक्चुअली हमारी बुक के अंदर जो है वो बेस कैटालिस्ट लेके हमें बताया गया है रिएक्शन को. तो बेस कैटालिस्ट लेके काम करते हैं तो किस तरह से होता है यहाँ. तो ये HCN जो है हमारा HCN प्लस HOH, मतलब अगर हम बेस कैटालिस्ट ले रहे हैं तो प्लस OH माइनस, इस तरह से रिएक्शन होता है. और यहाँ हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट, H2O रहेगा. सो H2O और फिर यहाँ हमें Cn माइनस मिलता है प्लस Cn माइनस, और ये Cn माइनस यहाँ पर अटैक करेगा. तो ये बेस कैटालिस्ट के साथ में रिएक्शन विच इज गिवन टू इन आवर बुक. तो मेथड इज सेम ओनली स्टूडेंट. यहाँ पर प्रोडक्ट साइनोहाइड्रिन ही बनने वाली है और कोई नहीं मिलेगा प्रोडक्ट में, पर फर्क ये पड़ेगा कि बेस ऐसे कैटालिस्ट लिया तो पहले क्या होगा, यहाँ पर वाटर एंड ये हमारा न्यूक्लियोफाइल अलग हो जाएगा और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल जो है वो रिएक्ट करेगा कार्बोनिल कार्बन के ऊपर. और ये जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली फास्टर रिएक्शन होता है. तो फास्टर रिएक्शन है इसीलिए यहाँ पर हमें जो इंटरमीडिएट है वो इंटरमीडिएट जल्दी से यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट होता है इंटरमीडिएट का. तो ये रिएक्शन मोर प्रिफरेबल है ऐसा कहा जाता है. नाउ विल गो विद द सेकेंड रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन.
in that reaction we are going to study about the taking the any example. सपोज यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेके चले कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ में यहाँ अगर हमने H लिया है और यहाँ CH3 मतलब R लिया है, तो ये हुआ हमारा इथेनॉल. इथेनॉल का हम रिएक्शन करवाते हैं HCN के साथ में. सो इथेनॉल का रिएक्शन हमने करवाया यहाँ पर, तो हमारी पास में ये CH3, यहाँ होगा OH, यहाँ होगा CN और यहाँ होगा H. सो ये हुआ हमारा प्रोडक्ट इथेनॉल साइनोहाइड्रिन. मैंने क्या बोला, यहाँ पर जो रहेगा वो तो साइनोहाइड्रिन ही रहेगा. तो ये हो गया हमारा यहाँ रिएक्शन में इथेनॉल साइनोहाइड्रिन. तो इस तरह से हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे. अब जब आगे इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो आगे हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H+ जब यहाँ बनेगा तो क्या बनता है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब यहाँ पर से ये हमारा जो CN है वो CN कन्वर्ट हो जाएगा ओइक एसिड में. सो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा CH3, H, OH और यहाँ हो जाएगा COOH. ये हो गया. आगे जब हमने साइनोहाइड्रिन, इथेनॉल साइनोहाइड्रिन का हाइड्रोलिसिस किया या तो प्रोटोनेशन किया, तब हमें यहाँ पर रिएक्शन के बाद में जो मिला वो 2-हाइड्रोक्सी, ये हुआ 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड. ये हमारा इक एसिड हो गया. तो दिस इज द रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वी आर टेकिंग हियर R. तो इस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट हमें मिल सकती है. तो ये आप प्रैक्टिस से कर सकते हो अच्छी तरह से स्टूडेंट. तो इसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी, ये है हमारा प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड. ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि साइनोहाइड्रिन जो मिला है वो साइनोहाइड्रिन का फर्दर हाइड्रोलिसिस होता है तो वो इक एसिड में कन्वर्ट होता है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बस ये ध्यान में रखोगे, जितने भी CN है वो CN का कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. अब जाते हैं सेकेंड रिएक्शन में. उसमें हम लेते हैं NaHSO3. NaHSO3 रिएक्शन करवाते हैं. अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है. तो ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल. HSO3 जो है वो है न्यूक्लियोफाइल. तो रिएक्शन होगा, यहाँ हम देखेंगे C डबल बॉन्ड O के साथ में प्लस NaHSO3. तो यहाँ जिस तरह से हमारा स्टेप है उसी तरह से यहाँ हमें करना है. सो फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन माइनस चार्ज के साथ में, और यहाँ हमारे पास में SO3H जुड़ता है. फर्दर प्रोटोनेशन अगर हम करते हैं H+ प्रोटोनेशन अगर हम यहाँ करेंगे उसका, या तो हम उसे प्रोटॉन शिफ्ट भी बोल सकते हैं. तो यहाँ जो है Na जो बचा हुआ है वो, तो यहाँ हो जाएगा SOH यहाँ, और ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हुआ तो इसीलिए उसे हमें प्रोटॉन शिफ्ट भी बोलेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट बोलेंगे. और यहाँ हमारे पास में आ जाएगा SO3Na. तो इस तरह से हमें ये प्रोडक्ट मिला जो सॉलिड फॉर्म में होता है. ये भी यहाँ एक ध्यान में रखना है. दिस इज प्रोडक्ट ऑलवेज इन द सॉलिड फॉर्म. So student, I think this is clear to you. Both the reactions we have understand.
in both the reaction we have to see only the which is the nucleophile is attacking towards the carbon. Now this third one, it is very important, Grignard reagent. Grignard reagent में हमें मालूम है RMgX. अब यहाँ पर ये कंडीशन है कि मैग्नीशियम इज मोर पॉजिटिव देन द R. तो यहाँ पर R जो ग्रुप है, कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव रहता है. तो यही स्पीसीज इसीलिए है कि यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में R जो है वो रिएक्ट करेगा, वो हमें ध्यान रखना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रिंगार्ड रिएजेंट. C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX. यहाँ मैंने बताया आपका न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो न्यूक्लियोफाइल इज योर R. अब न्यूक्लियोफाइल R आपका अटैक करेगा ये कार्बन के ऊपर. सो यहाँ आपका जैसे ये कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, C, ये O, यहाँ नीचे आपका ये न्यूक्लियोफाइल R, और O के साथ में ये जो है हमारा MgX. तो O MgX 1 2 3 4 5 6 विद द नेगेटिव चार्ज. सो इस तरह से आपके पास में OMgX यहाँ जुड़ेगा और कार्बन के साथ में यहाँ R जुड़ेगा. तो ये आपका इंटरमीडिएट हुआ. फर्दर उसका प्रोटोनेशन हम करते हैं. फर्दर प्रोटोनेशन करने से यहाँ जो ये MgX जो है वो यहाँ से निकल जाएगा. तो यहाँ हमारे पास में हो जाएगा COH और ये R, और ये जो MgX जो है उसके साथ में ये OH हमारा लग जाता है. तो यहाँ होगा MgX OH. तो ये यहाँ रिएक्शन हुआ. ये माइनस, या तो इसे हम माइनस MgX OH इस तरह से हम बताएंगे. तो ये यहाँ पर प्रोडक्ट हुई. तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमें अल्कोहल मिल रहा है. तो ग्रिंगार्ड रिएजेंट से जब हम अल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं तो प्रोडक्ट इज अल्कोहल. सो इस तरह से ग्रिंगार्ड रिएजेंट जो हमने 10th चैप्टर में भी पढ़ना शुरू किया था, तो तभी भी हमने देखा था कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट. उससे हम यूज करके काफी सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं. सो हियर यू कैन सी R is behaving as a nucleophile and afterwards we get alcohol as a product. So this is the third chemical preparation or chemical properties of aldehyde and ketone. Now we'll go with the next reaction of aldehyde and ketone. Here student, अल्कोहल की जब बात है तो एक बात ये भी ध्यान में रखते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कोई भी अल्कोहल हम यहाँ पर ग्रिंगार्ड रिएजेंट का यूज करके बना सकते हैं. सिर्फ डिपेंड्स वो रहेगा कि हम यहाँ पर कौन सा ले रहे हैं. इथाइल लिया है हमने तो इस तरह से यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है. मीन्स वी कैन यूज द ग्रिंगार्ड रिएजेंट टू प्रिपेयर एनी ऑफ द primary, tertiary or secondary alcohol. So now just we'll see next reaction for aldehyde and ketone with ROH. With ROH, the same way we'll start C double bond O plus ROH. Now here your nucleophile will be what students? R is your nucleophile. So it attack. So this is your first step. Here you have O and here this R. This is your first step.
Now the next, as we go for the protonation for this, so जब प्रोटोनेशन करेंगे हम उसमें से, तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये हमारा सो सी, यहाँ OH और यहाँ रहेगा OR। तो ये आप देख सकते हो। यहाँ अभी हमें देखना ये है, ये इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पर ये अल्कोक्सी अल्कोहल मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ भी R ग्रुप है, तो ये अल्कोहल जो है वो है अल्कोक्सी अल्कोहल। अब ये जो हमारा अल्कोक्सी अल्कोहल है उसमें से आगे अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर भी हमें ओइक एसिड मिलता है। तो ये रिएक्शन फिर से एक बार यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। नीचे इतना क्लियर आपके लिए विजिबल नहीं है, इसीलिए सो जस्ट लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट। तब तक आप बाकी के रिएक्शन को थोड़े से मेमोराइज करो, और मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह से आपको समझाया है तो आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और फाइनल हमें प्रोडक्ट क्या मिलती है। सो ROH के साथ में रिएक्शन देखते हैं हम। फोर्थ रिएक्शन पूरा यहाँ लिख रही हूँ स्टूडेंट, ROH C++ प्लस ROH। अब यहाँ पर आपका जो है ये रिएक्शन आपका होगा ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ये बात यहाँ बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ शुरू हो जाता है और फिर से आप वहीं पे एल्डिहाइड और कीटोन पे आके खड़े हो जाते हो। तो यहाँ पर ड्राई HCl लेना जरूरी है, ताकि जो भी हमारा अल्कोक्सी अल्कोहल मिलेगा उसमें से वो जो अल्कोहल जो है वो वाटर पोर्शन एब्जॉर्ब कर ले, इसलिए ड्राई HCl या तो HCl गैस लेना जरूरी है। तो यहाँ सबसे पहले जो हमें मिलता है उसी तरह से ये हुआ हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट या स्लो स्टेप जो है ऑक्सीजन विथ माइनस चार्ज, एंड यहाँ आपके पास में जो है वो आपका जो न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ वो, तो OR ये आपका फर्स्ट स्लो स्टेप। अब इसके बाद में आगे हम जाते हैं प्रोटोनेशन के लिए। प्रोटोनेशन में जाएंगे तो यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका, तो ये है हमारा अल्कोक्सी अल्कोहल जिसे हम कहते हैं अल्कोक्सी अल्कोहल। और इसे भी आप देख सकते हो तो ये अल्फा पोजीशन पे है, तो अल्फा अल्कोक्सी अल्कोहल कह सकते हैं हमें इसको, क्योंकि कार्बन के दोनों बाजू यहाँ OR ग्रुप है और यहाँ OH ग्रुप है। तो इफ प्रिपरेशन प्रपोर्शन मैंने अभी आपको बताया इस तरह से, अगर प्रपोर्शन ऑफ अल्कोक्सी अल्कोहल की ज्यादा प्रपोर्शन में मिल रहा है तो ड्राई HCl गैस लेना जरूरी है, मैंने बोला, नहीं तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगा। ड्राई HCl का काम यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टॉप करता है, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक द ड्राई HCl। तो ये कंडीशन को आप ध्यान में रखोगे। नाउ नेक्स्ट विल गो विद द फिफ्थ नंबर रिएक्शन। स्टूडेंट इसके लिए आप बुक में जिस हिसाब से दिया है वो प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि जो N लिया है, Z लिया हुआ है, उस Z के लिए आप अमोनिया के डेरिवेटिव्स लेके आप उससे बहुत सारे नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हो। तो मैं सिर्फ यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो नेक्स्ट इज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ammonia and its derivatives।
So same way here C डबल बॉन्ड O प्लस, अब यहाँ पर देख करना ये है कि एमोनिया का जो हाइड्रोजन है ना, उसका एक हाइड्रोजन को हम Z के नाम से अलग कर देते हैं। तो यहाँ देखना है कि ये NH2 के साथ में इन द फॉर्म ऑफ Z क्या जुड़ सकता है। तो बुक के अंदर स्टूडेंट्स हमें बहुत सारे पूरा पेज में दिया हुआ है, तो आप वो सारे रिएक्शंस को 1 बाय 1 प्रैक्टिस करोगे, गो थ्रू करोगे, और उसमें आपको बस यही ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल जो है, जैसे एमोनिया में से हाइड्रोजन, तो यहाँ हम Z इज इक्वल टू हाइड्रोजन लेके अगर हम काम करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा हमारा। तो यहाँ आपको यही देखना है कि NH2 आपने लिया है, तो यहाँ आपके पास में C डबल बॉन्ड फिर N और Z, इस तरह से आपके पास में रिएक्शन होता है, और यहाँ हो जाएगा -H2O। Z के लिए अगर हमने R कंडीशन यहाँ पर रखा, सपोज Z इज इक्वल टू हमने R लिया है यहाँ, तो यहाँ जो आपने Z लिखा है वहां आप R लिखोगे। उसी तरह से अगर Z इज इक्वल टू आपने OH लिखा है, तो यहाँ आपके पास में OH आएगा। उसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक के अंदर दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो ये भी इसी तरह से ही करके दिया है, एमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स करके। तो अमोनिया का जो एक हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बाकी के सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूला से, तो वो करके आप उसकी प्रैक्टिस करना, और उससे बनते हुए बहुत सारे कंपाउंड जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे। होप स्टूडेंट्स ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड और कीटोन की थी वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। Practice it regularly and just paste it on your desk table, so it is easy for you to identify, students. Thank you.